गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले पार्ट में हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। वी हैव डिस्कस अबाउट द प्योर सब्सटेंस की व्हाट आर द प्योर सब्सटेंस, दैट द एलिमेंट एंड द कंपाउंड विच वी हैव कंप्लीटेड, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड्स इज कॉल्ड इम्प्योर. Impure is also known as mixture. Clear, in mixture the substance are not mixed in the fixed proportion. We also differentiate between the mixture and the compound. कि compound in which the substance are mixed in the fixed proportion, but in the mixture the substance are not mixed in the fixed proportions. So now we have discussed homogeneous solution also. Homogeneous, heterogeneous we have discussed. Means which are uniformly mixed are called homogeneous, and heterogeneous in which the substance are not uniformly mixed. In the homogeneous there is a no separation boundary, वहाँ पे कोई separation boundary नहीं होती. But in heterogeneous there is a separation boundary between two or more components. And we also completed a solution. कि solution के बारे में पढ़ चुके थे. Particle size we have discussed, their stability we have discussed, they show tidal effect or not. But now today we have discussed solution, which is also a true solution, colloidal and suspensions. The solution is the part of homogeneous, and colloidal and the suspension is the part of heterogeneous. So the first difference between all these things, what are solution? These are the homogeneous. What are the colloidal and the suspensions? These are the heterogeneous. So first point of difference is कि जो solution होते हैं वो homogeneous है, जो colloidal और suspension है वो आपके होते हैं heterogeneous. तो ये आपका है पहला point. Clear? Solution को हम पहले कर चुके हैं, but now again we have discussed on these points. First is particle size. क्लियर कि पार्टिकल साइज क्या होगा सॉल्यूशन का, कोलाइडल का और सस्पेंशन का. क्लियर, जो आपका कोलाइडल है इसको कई बार SOL, दिस इज आल्सो सोल, कैन आल्सो बी रिटन एज. क्लियर, इनको सोल भी कह देते हैं कोलाइडल को कई बार. तो पहली बात आती है पार्टिकल साइज की कि व्हाट इज द पार्टिकल साइज इन सॉल्यूशन, इन द कोलाइडल एंड इन द सस्पेंशन. द पार्टिकल साइज इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर. नैनोमीटर मीन्स 10 raised to power minus 9 मीटर के बराबर होता है आपका नैनोमीटर. क्लियर, तो आपका पहला आ गया पार्टिकल साइज. उसके बाद हमने सबके पार्टिकल साइज के बारे में डिस्कस करना है. वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पार्टिकल साइज ऑफ ऑल दीज मिक्सचर्स. कि व्हाट इज नैनोमीटर, वी हैव रिटन हियर फॉर यू, means 10 raised to power minus 9, that is nanometer. So the particle size means जो solution है उसके अंदर जो particle का size होगा वो आपका होगा 10 raised to power minus 9 मीटर और 1 नैनोमीटर. means particle इतने छोटे होते हैं we are not able to see with the naked eye. What is the particle size in the colloidal? The particle size in colloidal vary from 1 nanometer to 10 नैनोमीटर. कि जो particle का size होगा colloidal में वो 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में होगा. अगेन द पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. सो व्हाट इन द केस ऑफ सस्पेंशन? इन द केस ऑफ सस्पेंशन द पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर. तो ये हमने तीनों को डिफरेंशिएट कर दिया पार्टिकल साइज के बेस के ऊपर. इन द सॉल्यूशन द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. इन द कोलाइडल और इन द सोल द पार्टिकल 1 to 10 nanometer. But in case of suspension the particle size is more than 100 nanometer. So on these property we have to differentiate all these. Next आता है filterability. Filterability का meaning है कि what happen to these solutions or these mixtures when they pass through a filter paper. Means the filterability, जो solution होते हैं आपके, it can pass through every filter paper. मीन्स जब इनको आप किसी फिल्टर पेपर से पास करवाओगे, फिल्टर पेपर के ऊपर आपको नो रेसिड्यू मीन्स वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. मीन्स दे कैन पास थ्रू एवरी फिल्टर पेपर. ये हर एक फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे और आपको कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा. दैट आल्सो पास थ्रू एवरी फिल्टर पेपर. ये भी हर एक तरह के फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, आपको कोई भी रेसिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं मिलेगा. क्यों? इनका पार्टिकल साइज क्या है? छोटा है. क्लियर, बट दिस सोल्यूशन कैन नॉट बी पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन. क्लियर, आपने चैप्टर पढ़ा था हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सोल्यूशन, वहां पे आपकी मेम्ब्रेन आती थी, तो ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो गई. बट दीज कैन नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. ये फिल्टर पेपर से कैन नॉट पास, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे. मीन्स जब इनको आप फिल्टर पेपर से पास करवाओगे
तो जो लिक्विड कंटेंट होगा वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जो सॉलिड कंटेंट होगा वो आपका सेपरेट हो जाएगा एट दी फिल्टर पेपर। नेक्स्ट आपका आता है सेटलिंग ऑफ अ पार्टिकल। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल मीनिंग होता है बेटा स्टेबिलिटी, कि ये स्टेबल है या नहीं है। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल मीनिंग है कि जब आप इन तीनों सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखोगे तो इनके पार्टिकल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। तो सबसे पहले सेटलिंग ऑफ पार्टिकल मीन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन सॉल्यूशन होता है आपके स्टेबल। स्टेबल मीन्स इनको आप कुछ देर के लिए अगर रख देते हो, कुछ देर के लिए रख देते हैं तो जो पार्टिकल हैं वो आपके सेटल डाउन नहीं होते। मीन्स दीज आर द क्वाइट स्टेबल। इनके पार्टिकल को आप सेटल डाउन कर सकते हो बाय द सेंट्रीफ्यूगुलेशन। सेंट्रीफ्यूगुलेशन मीन्स कि किसी भी सॉल्यूशन को हम वी विल रोटेट इट, जब उसको रोटेट करेंगे जो हैवी पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम। लेकिन अगर इनको आप अनडिस्टर्ब रखोगे तो पार्टिकल आपके सेटल डाउन नहीं होंगे, पार्टिकल आपके सेटल डाउन नहीं होंगे अनडिस्टर्ब रखने से। लेकिन जब आप इनको क्या करोगे, रोटेट करोगे, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगुलेशन, कि जब आप कोलाइडल का सेंट्रीफ्यूगुलेशन कराओगे तो उनके जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। बट जब इनको कुछ देर के रखते हैं तो ये भी आपके स्टेबल ही होंगे। मीन्स जो आपकी सेटलिंग पार्टिकल है, सोल्यूशन भी स्टेबल है, कोलाइडल भी स्टेबल, लेकिन सस्पेंशन आपके स्टेबल नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जब सस्पेंशन को कुछ देर के लिए आप अनडिस्टर्ब रखोगे तो पार्टिकल आर सेटल डाउन एट द बॉटम, वो आपके सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में। क्लियर। तो ये था आपका सेटलिंग। तो उसके बाद हम करते हैं टाइडल इफेक्ट, कहते हैं टाइडल इफेक्ट बोल दो, टिंडल इफेक्ट बोल दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइडल इफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट। कि इसको हमने यह समझना है कि आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी रूम में एक छोटा सा होल होता है, जब उसमें से सन की लाइट आती है तो आपको पार्टिकल उसके अंदर सस्पेंडेड दिखाई देते हैं, मतलब फ्लोट करते दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही इसके अंदर हम देखेंगे कि जब हम लाइट को सॉल्यूशन के अंदर फोल्ड करें, कोलाइडल के अंदर फोल्ड करें और सस्पेंशन के अंदर फोल्ड करें तो आपको पार्टिकल दिखाई देंगे या नहीं देंगे। अब जो आपका सोल्यूशन है इसके अंदर पार्टिकल इतने छोटे हैं कि जब इसमें से लाइट पास होती है तो यू आर नॉट एबल टू सी द सस्पेंडेड पार्टिकल। मीन्स ये आपके टाइडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, तो लिख सकते हैं नॉट शो। क्लियर। टाइडल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो कोलाइडल है वो आपके मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी। मे और मे नोट बी का मीनिंग है कि अगर पार्टिकल साइज नियर अबाउट 10 के होगा तब आपको जब लाइट पास होगी तो पार्टिकल आपको सस्पेंडेड दिखाई देंगे। लेकिन जब अगर पार्टिकल नियर अबाउट 1 नैनोमीटर होगा तब आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आपके जो सस्पेंशन है ये आपका टाइडल इफेक्ट शो करेंगे। आई होप आप समझेंगे कि टाइडल इफेक्ट का मीनिंग क्या है। मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कोई कंटेनर लिया, इसमें कोई सोल्यूशन है, मैंने यहाँ से टॉर्च की हेल्प से इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई। क्लियर। जब लाइट इसमें से पास हो रही है अगर इसके अंदर आपके पार्टिकल सस्पेंडेड दिखाई देंगे तो उसको हम टाइडल इफेक्ट कहते हैं या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है कि जब किसी डार्क रूम में लाइट एंटर करती है तो उसके अंदर आपके डस्ट पार्टिकल आपको फ्लोट करते दिखते हैं, उसको मतलब उस लाइट के अंदर वो डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही जब किसी सोल्यूशन में से लाइट पास होगी उसमें पार्टिकल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अगर दिखेंगे तो टाइडल इफेक्ट या टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहे इसका मतलब टाइडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। अब सोल्यूशन में पार्टिकल इतने छोटे हैं वो लाइट में दिखाई नहीं देंगे तो दे डिडंट शो द टाइडल इफेक्ट। बट जो कोलाइडल है इसमें दिख भी सकता है और नहीं दिख सकता, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पार्टिकल के साइज के ऊपर। क्लियर। लेकिन आपके जो सस्पेंशन होंगे उसके अंदर आपको टाइडल इफेक्ट दिखाई देगा, मीन्स पार्टिकल आपको सस्पेंडेड दिखाई देंगे। उसके बाद आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स कि ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है। अब जो आपके सोल्यूशन होंगे बेटा वो आपके होंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स आप उनके अंदर से इजीली आप देख सकते हो। क्लियरली यू हैव विजिबल अदर साइड आल्सो। लेकिन जो कोलाइडल होते हैं बेटा वो आपके ट्रांसपेरेंट और ओपेक की बीच वाली कैटेगरी जिसको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो मीन्स दीज आर कैन बी रिटन एज ट्रांसल्यूसेंट, इनको हम ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे, किसको, कोलाइडल को। लेकिन जो आपके सस्पेंशन होते हैं वो आपकी होती है ओपेक। तो ये आपका बेटा दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन इन एग्जाम। डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। So you have to differentiate like this. First of all, the solution, sometimes there are two solutions. Solution are the homogeneous, colloidal and suspension are the heterogeneous. After that, the particle size. Clear? So in the solution, the particle size is less than 1 nanometer, but in colloidal, the particle size is 1 to 10 nanometer. In suspension, the particle size is more than 100 nanometer. Next, आपका आता है filterability. कि जो solution है, that can pass through every filter paper. Colloidal also pass through every filter paper but they didn't pass through the animal membrane, कि animal membrane से पास नहीं होते।
and they cannot pass through a filter paper. They are separating at the filter paper as a residue. उसके बाद है सेटलिंग. सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल कि मतलब स्टेबल है या नहीं है. ट्रू सॉल्यूशन आपके स्टेबल है, मीन्स इसके पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे. कोलाइडल भी आपके स्टेबल है, लेकिन जब इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तब इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में. लेकिन जो आपके सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं है. जब भी उनको आप अनडिस्टर्ब रखोगे थोड़ी देर के लिए, दे आर द पार्टिकल स्टार्ट सेपरेटिंग एट द बॉटम. उसके बाद है टाइडल इफेक्ट. टाइडल इफेक्ट का मीनिंग है कि जब इनमें से लाइट पास करवाएंगे तो किस किस में आपको पार्टिकल दिखाई देंगे. तो सिंपल सी बात है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे. इसका मतलब वो आपका टाइडल इफेक्ट शो नहीं करेगा. लेकिन कोलाइडल और सस्पेंशन में आपको पार्टिकल दिखाई देंगे. वो डिपेंड करता है किसके ऊपर. कोलाइडल में डिपेंड करता है कि पार्टिकल साइज कितना है. जब पार्टिकल साइज आपका नियर अबाउट, मतलब जो आपका कोलाइडल है वो आपका टाइडल इफेक्ट शो भी कर सकता है और नहीं भी शो कर सकता. वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज के ऊपर. जो आपका कोलाइडल है उसके जो पार्टिकल साइज है वो कितने साइज के हैं, कितने बड़े हैं वो. बट इन केस सस्पेंशन आपको पार्टिकल साइज इजीली विजिबल होंगे. पार्टिकल विजिबल होंगे मीन्स ये आपका टाइडल इफेक्ट शो करेगा. आफ्टर दैट अपीयरेंस. अपीयरेंस मीन्स कैसे होंगे, ओपेक होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे या ट्रांसलूसेंट होंगे. तो जो सस्पेंशन है आपका वो आपका ओपेक होगा, कोलाइडल आपका ट्रांसलूसेंट होगा, और आपका जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे वो आपके होमोजीनियस होते हैं और आपके वो ट्रांसपेरेंट होंगे. कोलाइडल आपके ट्रांसलूसेंट. और कई बार कोलाइडल को हम सोल भी कह देते हैं. सोल का मीनिंग होता है कि जब किसी लिक्विड में कुछ सॉलिड को ऐड किया जाता है तो उसको हम सोल कह देते हैं. मीन्स जब किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को ऐड करके सॉल्यूशन बनाया जाए उसको हम सोल कहते हैं. तो ये आपका टॉपिक था, डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन. सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है. नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. क्लियर. अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपका कितना सोल्यूट है और कितना आपका क्या है, सॉल्वेंट है. क्योंकि कोई भी जो आपका सॉल्यूशन बना है वो दो चीजों से मिलकर बना है. एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. अब सोल्यूट और सॉल्वेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज सोल्यूट? which dissolve in solvent, that is solute. what is solvent in which solute is dissolved, that is solvent. कि solute क्या है? solute वो है जो आपका solvent में dissolve होता है. क्लियर हो? solute. और solvent क्या है? जिसमें आपका solute dissolve होता है. तो आपके किसी भी solution के अंदर दो चीज होती हैं, एक होता है solute, एक होता है solvent. क्लियर. अब जो concentration है वो दो तरह से है, mass by mass concentration, mass by volume concentration. अब हम इसको एक एग्जांपल से नोट करेंगे. इफ वी से दैट, क्लियर, कि जो आपका WA है दैट इज अ वी कैन से मास ऑफ अ सोल्यूट एंड WB इज द मास ऑफ अ सॉल्वेंट. सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है, अगर हम लिखें यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ WA, WA मीन्स सोल्यूट की कंसंट्रेशन. किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर. तो ये आपका बनेगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय WA प्लस WB इंटू में 100. अब ये आपका WA WB क्या है? दैट इज अ मास ऑफ द सॉल्यूशन. क्लियर. WA क्या है? मास ऑफ सोल्यूट. क्लियर. WA प्लस WB क्या है? दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर. तो ये आपके आ गई कंसंट्रेशन ऑफ WA. अगर हमने किसकी निकालनी है? कंसंट्रेशन ऑफ WB. क्लियर. तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? WB डिवाइड बाय WA प्लस WB इंटू में 100. अब ये डिपेंड करता है कि आपने किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है. अगर आपने सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी है तो सोल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास. अगर आपने सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है तो आपका क्या आएगा? सॉल्वेंट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास इंटू में 100. क्लियर. तो ये आपका आ गया. अगेन दिस इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये आपकी आ गई मास बाय मास कंसंट्रेशन. अभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या होगी? तो यहां पे हम मास की जगह लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर. तो यहां पे क्या आएगा आपका? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब इसका मीनिंग क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट को जब हम डिवाइड किससे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन.
क्लियर। अब मास और वॉल्यूम में क्या फर्क है, जो मास है वो केजी में मेजर किया जाता है और जो वॉल्यूम है आपकी वो लीटर में मेजर की जाएगी या मिलीलीटर में मेजर की जाएगी। तो ये आपकी दो तरह की कंसंट्रेशन है, दैट इज मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम। तो मैंने निकाल दी यहाँ पे क्या, डब्ल्यू मीन्स सोल्यूट की आपकी कंसंट्रेशन। तो ये आपकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन है और ये आपकी सोलवेंट की। तो इन दैट वे यू विल फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो इसके बेस पे आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो वाटर है वो 100 ग्राम है, मीन्स जो आपका सोलवेंट है वो आपका क्या है, वाटर है। क्लियर। उसका मास कितना है, 100 ग्राम। और सोल्यूट आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका मास कितना है, दैट इज 36 ग्राम। क्लियर। तो सोल्यूट का मास कितना है, 36 ग्राम, सोलवेंट का मास कितना है, 100 ग्राम। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। क्या निकालनी है आपने, आपने सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी है कि जब 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो वेरी इजी, तो हमने क्या करना है, 36 डिवाइड बाय 100 प्लस 36, दैट मतलब 36 डिवाइड बाय 136। सो आफ्टर सॉल्विंग इट इनटू 100, तो यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 26.47%। सो इन दैट वे यू विल कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट। अब ये तो हमने किसकी निकाली, सोल्यूट की निकाली। अगर हमने किसकी निकाली, सोलवेंट की निकाली है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ 36 यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 136 इनटू में 100। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई, दिस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मींस सोलवेंट की है। और जब हम इससे डिवाइड करेंगे 36 को 136 से डिवाइड करेंगे तो वो आपकी किसकी आएगी, सोल्यूट। सोल्यूट मींस NaCl, NaCl मींस सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह का आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट और सोलवेंट। करना कुछ नहीं है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को ऐड करोगे। अगर सोल्यूट की निकालनी है, सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल, अगर सोलवेंट की निकालनी है, सोलवेंट डिवाइड बाय टोटल। क्लियर। दिस इज योर टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। So now we will discuss separation of mixture. We have previously discussed in the mixture two or more different kind of substance mixed together to form mixture. Mixture means impure. So now how will we separate these two component? Clear. So the first mixture we will discuss about the heterogeneous. जो heterogeneous mixture जो collider और suspension थे, तो उनको हम कैसे separate करेंगे। तो first we will discuss about the suspension. For the suspension there are two technique, one is filtration, another is descentation. कि सस्पेंशन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट को अलग करने के लिए आपके पास दो टेक्निक है, फिल्ट्रेशन एंड डिसेंटेशन। और फिल्ट्रेशन और डिसेंटेशन क्या है, फॉर एग्जांपल वी प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस सैंड। हमने वाटर और सैंड का मिक्सचर प्रिपेयर किया। क्लियर। सो हाउ विल सेपरेट वाटर एंड सैंड, कि वाटर से सैंड को या सैंड से वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे। सो द फर्स्ट टेक्निक इज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से क्या होगा, वी विल टेक अ कंटेनर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंटेनर, ये हमने कंटेनर लिया। क्लियर। सो विद द हेल्प ऑफ स्टैंड, यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंड है। क्लियर। वी विल टेक अ फनल, ये हमने फनल ली, एंड वी प्लेस अ फिल्टर पेपर इन इट। क्लियर। हमने इसके अंदर क्या लगा दिया, एक फिल्टर पेपर लगा दिया। सो नाउ द मिक्सचर विच वी हैव प्रिपेयर्ड, दैट इज सैंड एंड वाटर, यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया उसको हमने। सो नाउ वी विल पुट दैट मिक्सचर, क्लियर, इन दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस सैंड। क्लियर। सो व्हेन दिस मिक्सचर इज एडेड इनटू इट, सो आप क्या देखोगे, द वाटर इज कमिंग डाउन साइड, ऑल द सैंड इज कलेक्टेड एट द फिल्टर पेपर. So if we open that filter paper, you will see there are the particle of sand. So in this way we will separate suspension by the method of filtration. So now what is the method of descentation? ये descentation क्या है? अब descentation में क्या होगा? Again this is a container which contain sand and water solution. So we will left it for a few hours. इसको हमने कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख दिया. तो you will see that कि the sand particle is settled down at the bottom. कि जो आपके sand particle है bottom पे इकट्ठा हो जाएंगे and the water is at the
तो हम क्या करेंगे, वी विल सेपरेट दिस लेयर ऑफ वाटर इन अनदर कंटेनर बाय पोरिंग इन इट। तो हम क्या देखेंगे, जो सैंड है आपका वो नीचे रह जाएगा और जो वाटर है वो सारा आपका इस कंटेनर में आ जाएगा। तो ये आपके दो मेथड थे सस्पेंशन को सेपरेट करने के लिए, एक फिल्ट्रेशन है और दूसरा है डिसेंटेशन। हमने फिल्ट्रेशन की यूज किया क्योंकि सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज मोर देन 100 नैनोमीटर होता है और ये आपके फिल्टर पेपर से पास नहीं होते एंड दैट सेपरेट एट द फिल्टर पेपर। सो दिस इज द टेक्निक which is used to separate the suspension. Next we will discuss about the collider. हमने एक छोटा सा आपको हिंट दिया था कि जो कोलाइडल होते हैं उनके पार्टिकल स्टेबल होते हैं लेकिन उनको अलग किया जा सकता है बाय अ मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगुलेशन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रीफ्यूगुलेशन। सो सेंट्रीफ्यूगुलेशन इज टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल मिक्सचर और कोलाइडल सॉल्यूशन। So now separation of mixture heterogeneous, the part is colloidal, कि आपके जो कोलाइडल हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे हमने पढ़ा था। द कोलाइडल आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का मीनिंग क्या है कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे, इट इज रोटेट विद द सेंट्रीफ्यूगुलेशन मशीन। कि आपने कई बार देखा होगा लेबोरेटरीज के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो आपके ब्लड के सैंपल को लेते हैं, एक मशीन में डालते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं। इसलिए तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मीनिंग है कि कोई भी जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसको रोटेट किया जाएगा, मैन्युअली करें या बाय मशीन करें। तो जब वो रोटेट करेगा तो जो स्मॉल स्मॉल आपके पार्टिकल हैं दैट आर कोलाइड विद ईच अदर मेक द हैवियर पार्टिकल, और जब वो हैवी हो जाएंगे दैट आर सेटल डाउन एट द बॉटम, और वो कहाँ बैठ जाएंगे, सेटल डाउन एट द बॉटम, और जो अपर लेयर होगी उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। तो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगुलेशन? द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल। व्हाट इज द टेक्निक? इन दिस टेक्निक सिंपली द सॉल्यूशन और द कोलाइडल सॉल्यूशन इज रोटेटेड। इसको हम रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन। कौन सी मशीन? उसको सेंट्रीफ्यूगुलेशन मशीन कहते हैं। क्लियर? तो जब सेंट्रीफ्यूगुलेशन मशीन रोटेट करेगी तो लाइटर पार्टिकल कोलाइड विद ईच अदर एंड कंबाइन। जब वो लाइटर पार्टिकल घूमेंगे, कोलाइड करेंगे, कंबाइन होकर दे विल बिकम हैवियर, वो हो जाएंगे आपके हैवियर एंड सेटल डाउन एट द बॉटम। सो देयर विल बी फॉर्म अ टू लेयर, अपर लेयर एंड द लोअर लेयर। तो अपर लेयर में जो आपका होगा, जो आपका अपर लेयर होगी वो लाइटर की होगी और जो लोअर लेयर होगी वो होगी हैवियर की। तो हम अपर लेयर को सेपरेट कर लेंगे, लोअर लेयर को अलग सेपरेट कर लेंगे। अब इस कोलाइडल का और सेंट्रीफ्यूगुलेशन का यूज कहाँ पे होता है? जो आपका जो ब्लड है दैट इज कोलाइडल। मिल्क आपका क्या है? कोलाइडल है, बिकॉज मिल्क के अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? और आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर जब हम कपड़ों को धोते हैं तो उसके अंदर बेटा अलग अलग आपके जो डस्ट ग्रीज वगैरह होते हैं वो सारे मिक्स हो रहे होते हैं। क्लियर? वो अलग अलग नहीं दिखाई देते लेकिन वो आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो व्हाट वेयर द सेंट्रीफ्यूगुलेशन टेक्निक इज यूज्ड? The centrifugation technique is used at laboratory to diagnose the blood sample। कि जो ब्लड सैंपल में आपके अलग अलग ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगुलेशन टेक्निक का यूज करता है। यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जो ब्लड है वो आपका क्या है? एक कोलाइडल है। सेकंड, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, कि मिल्क से क्रीम को अलग करना। अब मिल्क को रोटेट करते हैं, हैवियर पार्टिकल हो जाते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, लाइटर पार्टिकल आपके सेटल हो जाते हैं। अब तो उन दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। तो वेयर द सेंट्रीफ्यूगुलेशन टेक्निक इज यूज? इट इज यूज इन लैबोरेटरीज टू डायग्नोज द ब्लड सैंपल। इट इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। सिमिलरली आपने वॉशिंग मशीन देखा होगा, वॉशिंग मशीन में भी आपके कपड़ों को, क्लॉथ को रोटेट किया जाता है। जब वो कपड़ों को रोटेट करते हैं तो उससे डस्ट या ग्रीस है जो बाहर आ जाती है। क्लियर? और आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगुलेशन टेक्निक का यूज आप टू वॉश द क्लॉथ बाय द मशीन भी यूज किया जाता है। तो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगुलेशन? आई होप यू अंडरस्टूड इट। कि पार्टिकल सॉल्यूशन को रोटेट करेंगे, हैवी लाइटर पार्टिकल कंबाइन होकर हैवी पार्टिकल बनाएंगे और हैवी पार्टिकल आपके सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम के अंदर। तो जो मैंने आपको बताया सिमिलरली यू हैव टू राइट इट। क्लियर? तो दिस इज योर सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर बाय द कोलाइडल। अब आपका एक और टेक्निक है बेटा, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर? अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन आपकी क्या है? अब बेटा जो मैग्नेटिक सेपरेशन आपकी है, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन विच इज यूज्ड टू सेपरेट द मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ऐसे सब्सटेंस
जिनकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक है उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करेंगे उसको मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आपके, इसके अंदर आपका आयरन, एयर, निकल, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनको सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक का यूज किया जाएगा। अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन है क्या? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिक्सचर है, हियर इट कंटेन सैंड, ग्रेवल्स एंड फ्यू पीसीज ऑफ आयरन। क्लियर? अभी हमारे पास मिक्सचर, इसके अंदर क्या है बेटा? आपका सैंड है, सोइल है और आपका क्या है? आयरन है। ये तीन सब्सटेंस है। अब इनमें से हमने आयरन को अलग करना है। सो वी विल टेक अ मैग्नेट, हम क्या लेंगे? एक मैग्नेट लेंगे एंड वी विल यूनिफॉर्मली मूव दिस मैग्नेट थ्रू दिस सॉल्यूशन। सो व्हाट यू हैव सीन, आप क्या देखोगे? यू विल सीन दैट कि द आयरन पार्टिकल आर स्टिक विद द मैग्नेट। सो इन दैट वे जो आपके मैग्नेट था उसने आयरन को अलग कर दिया, किससे? सैंड, ग्रेवल, सोइल से। तो ये एक आपकी अलग टेक्निक है मैग्नेटिक सेपरेशन टू सेपरेट द मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसके अंदर आपका आता है आयरन एंड निकल। क्लियर? जो आयरन और निकल है दे शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विच आर यूज्ड टू these substance are separated by using the magnetic separation technique. Clear? एक हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन, विच यू आल्सो डिस्कस इन द चैप्टर फर्स्ट आल्सो। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे सब्लिमेशन। हम नेक्स्ट आपकी टेक्निक है सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन टेक्निक किसके लिए है? फॉर व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस सब्लिमेशन टेक्निक इज यूज्ड? सो द सब्लिमेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर दो solid substance which is separate from their mixture, which directly change into vapor without changing into liquid. Means जो sublimation आपकी है उन solid substance को अलग करने के लिए यूज की जाती है जो डायरेक्टली solid से वेपर में चेंज होते हैं बिना लिक्विड में चेंज हुए। क्लियर? तो ये आपकी टेक्निक है जिसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। अब सब्लिमेशन के लिए कुछ सब्सटेंस है जो अपने नाम याद रखने हैं, नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो अंडरगो सब्लिमेशन जाते हैं। तो पेपर में आपको कहीं पे भी आयोडीन दिखाई दे, कैम्फर दिखाई दे, क्लियर, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन और इसके अलावा आपको अमोनियम क्लोराइड, जब भी ये दिखाई देगा तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, दैट इज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी आपका जो सॉलिड है दैट डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर, वो आपका डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, कि वो लिक्विड बनता ही नहीं है। आपने देखा होगा कि जो कपड़ों में हम व्हाइट कलर की टैबलेट रखते हैं जिसको हम नेफ्थलीन बॉल कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब नेक्स्ट सीजन हम कपड़ों को निकालते हैं जो उन बॉल का साइज पहले से कम हो जाता है और ना ही पीछे आपके कपड़े वहाँ पे गिल्ले होते हैं। तो रीजन इसका क्या है कि वो नेफ्थलीन बॉल डायरेक्टली चेंज होगी वेपर के अंदर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। मीन्स उनका लिक्विड नहीं बना, वो डायरेक्टली वेपर में चेंज होगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। मैं आपको बता देता हूँ क्या सब्लिमेशन के अंदर। फर्स्ट वी टेक अ चाइना डिश। क्लियर? एक चाइना डिश लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे परफोरेटेड शीट। परफोरेटेड शीट कुछ नहीं बेटा, इन दैट शीट देयर आर स्मॉल पोर्स, इसके अंदर स्मॉल पोर्स होंगे एंड यू विल प्लेस अ इन्वर्टेड फनल ऑन इट। इसके ऊपर क्या रखेंगे? हम एक इन्वर्टेड फनल रख देंगे लाइक दिस। क्लियर? उस इन्वर्टेड फनल के यहाँ पे कॉटन लगा देंगे ताकि इसमें से कंटेन जो मिक्सचर है वो बाहर ना जाए। क्लियर? इसमें हम लेंगे कोई भी सैंपल, क्लियर, जिस सब्लिमेशन के अंडर हो जाता है। क्लियर? और नीचे विद द हेल्प ऑफ बर्नर इसको हम हीट करेंगे। ये सारा आपका प्लेस होना स्टैंड, ये सारा स्टैंड के ऊपर रखा होगा। अब होगा क्या यहाँ से? मान लो यहाँ पे आपका है कैम्फर। कैम्फर क्या हुआ? डायरेक्टली वो वेपर में चेंज हो जाएगा। अब वेपर को बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये कोई सैंपल इसके अंदर मान लो सॉल्ट और आपका कैम्फर है या सॉल्ट और आयोडीन है। क्लियर? तो अब क्या देखोगे जो इन होल से निकलता हुए वेपर्स जाएंगे और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो ये वेपर जब इस फनल को टच करेंगे दैट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड। मींस सॉलिड से वेपर बने और डायरेक्टली वेपर से क्या बन जाएंगे? सॉलिड बन जाएंगे। फिर इस फनल को हम निकाल लेंगे और यहाँ से इस सॉलिड रेसिड्यू को अलग कर लेंगे जो आपका होगा प्योर आयोडीन या प्योर कैम्फर। सो ये आपकी टेक्निक थी विच इज यूज्ड टू सेपरेट दोज सॉलिड विच डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। क्लियर?
अब इसके बाद एक छोटी सी टेक्निक और है बेटा, उसको हम देख लेंगे। टू इमिसिबल लिक्विड की द टेक्निक यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल। इमिसिबल मीन्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जैसे पानी के अंदर तेल मिक्स नहीं होता, क्लियर। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है विच यूज टू सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड। अब इमिसिबल लिक्विड कौन कौन से हैं हमको हम देखते हैं, व्हाट आर द टू इमिसिबल लिक्विड। तो वो इमिसिबल लिक्विड के हमने बारे में बात करना है। इमिसिबल लिक्विड कि कोई भी इमिसिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे उसके बारे में हमने डिस्कस करना है, क्लियर। तो टुडे वी विल ओवर द हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट पार्ट में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ हम होमोजीनियस को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका आखिरी टॉपिक है आज का, इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड वो बेटा जो एक दूसरे मिक्स नहीं होते। अब उनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे, तो उस टेक्निक के अंदर होता है बेटा थीसल फनल, उसको कहते हैं थीसल फनल, उसका नाम है, क्लियर। अब आपके बुक में एक्टिविटी भी है कि फॉर सेपरेटिंग दिस वी विल यूज अ फनल, क्लियर। उस फनल का नाम होता है थीसल फनल, क्लियर। मतलब इन साइंस लैंग्वेज द फनल नेम इज थीसल फनल। तो थीसल फनल को हम यूज करते हैं टू सेपरेट, क्लियर। अभी थीसल फनल क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये एक्चुअल में एक कंटेनर है लाइक दिस, क्लियर। ये एक इस तरह का कंटेनर है, क्लियर। और यहाँ पे इसके लगा होता है एक वॉल्व, और ये है आपका एंट्री पॉइंट, और इसको यहाँ से स्टैंड के साथ हैंग कर दिया जाता है लाइक दिस, और यहाँ पे होता है आपका कंटेनर। इसका नाम है फनल, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम कहते हैं थीसल फनल, क्लियर। अब इस थीसल फनल में क्या हो, कोई भी इमिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे मिक्स नहीं होते, जैसे हमने लिया कैरोसिन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, दोनों ले लिए हमने। अब मस्टर्ड ऑयल और वाटर है कि जिसकी डेंसिटी होगी ज़्यादा, क्लियर, वो ऊपर, वो जिसकी डेंसिटी होगी ज़्यादा वो नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी होगी कम वो होगा ऊपर आपका। तो जब हमने क्या किया, दो लिए मिक्सचर, तो यहाँ पे दो लेयर बनेगी आपकी। फॉर एग्जांपल एक लेयर बन गई यहाँ तक ऐसे, क्लियर, और ये बन गई एक दूसरी लेयर। अब जो ऊपर वाली लेयर है वो किसकी है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सॉरी जिसकी डेंसिटी कम है, बिकॉज जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी बनेगी नीचे की लेयर। अब हम क्या करेंगे, हम इस फनल को ओपन करेंगे यहाँ से, और इस अकेली लेयर को हम यहाँ से सेपरेट कर देंगे। ये अकेली लेयर यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, जो अपर लेयर है वो इसके अंदर ही रह जाएगी। तो ये टेक्निक आपकी यूज होती है टू सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो यहाँ तक हमने आज देखना है, यहाँ तक आपने वीडियो को देखना है, वीडियो को देख के आपने समरी बनानी है, क्लियर। और इस समरी को आपने मेरे पास सेंड करना है और मैं इसको चेक करूँगा बेटा, क्लियर। तो सीधा वीडियो, अपना नाम कमेंट करो जो भी वीडियो को देखता है, और वीडियो को पूरा देखो। अगर आप कहीं से स्किप करोगे तो आपको अच्छे से वो समझ में नहीं आएगा, क्लियर। तो यू हैव टू मेक समरी ऑफ दिस विच टॉट टू यू टुडे, क्लियर। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।